I'll ask Salman to please start the process and start interviewing Khatija. Yeah, well, first of all, Khatija Shah that I'm speaking to. There's also Khatija, who's Siddiqui, who's a lawyer, and I am first of all, on behalf of all Pakistanis, would like to say how proud we are that we have such incredible, heroic, fearless human rights defenders in Pakistan. Khatija uh, Shah, I know, I've been following your trajectory in Pakistan. You're an incredibly successful entrepreneur, but how did you find yourself all of a sudden incarcerated, abducted, and the torture and the gross violations of human rights that you experienced? I'd like for people to know that. I mean, I've read about it, but I just want to know it, from your mouth. Thank you, Salman. So, I honestly, I was like, I think many Pakistanis, many, I guess, educated professional Pakistanis, and Imran Khan supporter. And I think before I was ever even an entrepreneur, or, before I was even, I went to college, even as a young child, I think all of us have grown up, thinking of Khan as the most iconic sort of person and figure in Pakistan. So I think well before Khan became a politician, we were already Khan supporters, and he was our hero. So once he obviously stepped into politics, and by that time I was, old enough, and I'd gone to college, and then I came back, and that's really when his party was sort of taking off. And I mean, he'd been in politics for a while, but it was after around 2010 when his party, the PTI, became like a this force to be reckoned with in the political stratosphere. And so I became a PTI supporter, and the first vote that I ever cast was for Khan. But I mean, I was an ordinary Pakistani, and I was not a part of the party. I never signed up. और बाकी पाकिस्तानियों की तरह मैं भी खान की सपोर्टर थी, और हमेशा वोट भी डाला, और फिर सारे धरने भी अटेंड किए। वो जो इस्लामाबाद में बड़ा धरना था, उधर भी मैं थी। और फिर जब 9 मई हुआ, बेसिकली I was honestly, I obviously had no clue कि ये आज के दिन ये होगा। और मैंने अपने फोन पे देखा, तो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन वो ट्विटर वगैरह पे आ रही थी कि खान को हाई कोर्ट से उन्होंने जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया है। और फिर वो फुटेजेस चल रही थी, एंड द वे दे वर मैन हैंडलिंग हिम, एंड ऑनेस्टली you think of somebody as your leader, and obviously उसमें आपको उस इंसान से बहुत affinity भी होती है, उसके लिए आपके दिल में बहुत it was unbearable to see that footage of Khan being dragged in that manner, and the anger, and sort of there was so much anger that I felt. And मैं तो काम पे जा रही थी, और मैंने उधर पीटीआई ऑफिशियल ने लिखा था कि प्रोटेस्ट हो रही है तो लिबर्टी मार्केट में। सो आई टोल्ड माय ड्राइवर कि मुझे उधर ले जाओ, और आई फ्रैंकली मैंने ना अपने किसी फैमिली को बताया। I was, because I was going to work, I told nobody, and because I was honestly, I felt so emotional, and I felt so overwhelmed and so angry. I was literally like, I was just acting out on my emotions, and I joined the protesters. अकेली में थी, और उधर पूरा एक अवाम का समंदर जमा हुआ था, और उनके अंदर में मैं चली गई। और फिर वो obviously चलना जो भी हुआ, they were walking towards Kant, and I was a part of that crowd. And उधर जब हम पहुंच गए, तो obviously there was a mob. Now I strongly believe, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे, जब तक हम कैंट पहुंचे थे, और जितने भी लोग मेरे साथ थे, मैंने किसी को किसी किस्म की वायलेंस नहीं करते देखा। किसी ने कोई ऐसी चीज ही नहीं थी किसी के पास कि जिससे वो कोई जलाओ घराव कर सके, कोई ऐसा, देयर वाज नो सच पैराफिरनेलिया इन द क्राउड। एंड वंस वी रीच्ड कैंट, एंड हम लोग मॉल ऑफ लाहौर बाहर जमा हो गए, तो थोड़ी देर में ही हमने देखा कि एक मॉब है, और वो चीजें तोड़ रहा है, और फिर लोग जो है वो अंदर चले गए हैं।
and then the police came, there was tear gas, and so मेरा घर करीब था, I left and I went home. Anyway, after that यही हुआ कि लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। फिर मुझे लोगों ने फोन किया कि आपकी भी गिरफ्तारी होगी। आई वाज शॉक्ड। मैंने आई मीन आई कुडंट इमेजिन कि मेरी गिरफ्तारी किस वजह से होगी। एंड कभी हमने पाकिस्तान में इन माय एडल्ट लाइफ एटलीस्ट, हम लोग तो ज़िया के वक्त में उस तरह से नहीं, वी नेवर लिव थ्रू दैट ईरा। बट मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि आप किसी प्रोटेस्ट पे जाएं उसके बाद आप गिरफ्तार हो जाएं। सो आई कुडंट बिलीव इट। आई वाज स्टिल स्केप्टिकल एंड आई वाज लाइक पता नहीं क्या बोल रहे। उसके बाद और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि यू शुड लीव होम। सो आई वाज anyway, to cut a long story short, I left home. They came, they picked up my father, they picked up my brother, they picked up my husband. They were also going to take my, young sons. And thankfully, my sister intervened and said कि नहीं, इनके exams है, आप इनको नहीं लेके जा सकते. And this was actually from my grandfather's house, who was the former chief of the army staff. And they were all there just to, they felt कि इधर तो कोई नहीं आएगा. But they did. And uske baad, when they had my husband, I said I will, hand myself over, because they said कि जब तक ये नहीं आएंगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे. So I walked myself to I was, hiding I was in different places. और वो जो, मेरी जिंदगी का एक period था, that was really like an experience that I've never had. Let me just, Khatija, that's so powerful what you just said. Let me just interject quickly here, because मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि why that was happening to you in Pakistan just one day before the 8th of May. And we both, obviously, like millions of other Pakistanis, हम सारे बड़े हुए हैं खान साहब को देख के और हमारी allegiance जो खान साहब के साथ है, it's the same way, जिस तरह I suppose कि जो लोग जिन्होंने कायद-ए-आज़म को देखा था और उनके दौर में वो बड़े हो रहे थे, तो उसी तरह मैं तो 40 साल से जानता हूँ खान साहब को, और क्रिकेट और ह्यूमैनिटेरियनिज्म और फिर पीटीआई। 8 मई को हुआ ये, मैं न्यूयॉर्क में था। मुझे यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कांग्रेस वुमन है, उसका नाम है मैक्सीन वाटर्स। मैक्सीन वाटर्स ने क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन पहले से ही जो थे इतने ज्यादा मोबिलाइज हो चुके थे कि वो मैक्सीन वाटर्स को कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। दिस इज बिफोर May 9th नाउ, कि खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले। तो शी गॉट इन टच विद मी एंड शी सेड, कैन यू सेट अप अ जूम कॉल बिटवीन माई सेल्फ एंड चेयरमैन इमरान खान। मैंने खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। और जो टाइम निकला ना खतीजा, रात के 11:30 बजे 8 मई को ये हुई जूम कॉल। अच्छा, और उस जूम कॉल में 15 मिनट की जूम कॉल थी। खान साहब ने मैक्सीन को कहा कि मैक्सीन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यू कैन इंडिपेंडेंटली वेरीफाई फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन, द व्हाइट हाउस, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। और उन्होंने सब कुछ जो 9 मई के बाद जो हुआ, ग्रोस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, abductions, torture of political workers, अरशद शरीफ की assassination, सब कुछ 8 मई को बता दिया। और ना हमें नहीं खतीजा ये पता था कि वो जो जूम कॉल है, which was a private Zoom call, was being recorded by the intelligence agencies, right? और अगली सुबह 9 मई है, right? तो खान साहब को सुबह सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब कमांडोज और रेंजर्स ने आके अगवा किया, तो I was shocked. I mean, I couldn't believe a former prime minister, the most popular Pakistani, a hero, would be taken like that. और सारी दुनिया में वो फुटेज जो है वो चली। मैंने मैक्सीन वाटर्स को फोन किया, मैंने कहा मैक्सीन, you just spoke with him last night and look what's happened. तो वो कहती कि let me get back in, because she was just perturbed by that whole thing. And what happened then was, Khatija, that she waited a week, and the first letter to Secretary of State Tony Blinken went with 70 signatures of Congress. Basically, the synopsis was, what the hell is happening in Pakistan? And, then you were abducted, so let's move this forward to
your time in incarceration, because like you said, they used your husband as a hostage to get you in, you know. Similarly, Yeah. like when they picked up my brother-in-law and went to my sister's house in Karachi, they used them as hostages to blackmail me. So please tell me about that experience, of psychologically how you were feeling, and your interaction with the other prisoners. So सलमान, जब मैं अपने घर से भी निकली थी, आई व्हेन आई लेफ्ट माय होम, एक तो दैट वाज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो वी लीड वेरी प्रोटेक्टेड लाइव्स. कभी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मैंने कभी आज सच यूज किया हुआ था, और ऑब्वियसली अपने ही घर में रहती थी. इस तरह से दर बदर कभी नहीं फिरी थी. और वो ऐसा वक्त था कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे वालिद साहब और मेरा भाई, यू नो, एंड माय हस्बैंड, दे वर इन देयर कस्टडी. मेरे भाई और फादर को तो उन्होंने रिलीज कर दिया, बट उसके बाद एवरीबडी, माय होल फैमिली, जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ एवरीबडी वेंट टू डिफरेंट लोकेशंस, बिकॉज मैं उनसे पकड़ी नहीं जा रही थी, और ये यू नो उनको दोबारा उनके लिए, दे कुड हैव कम बैक फॉर देम. सो मेरा, माय होल फैमिली वाज लिटरली just interacting with each other on this signal group that we had, और कोई किसी को नहीं बता रहा था कि हम किधर हैं. So I had no idea कि where my father is. I had no idea where my sister is. I had no idea. मेरे जो बेटे थे वो अपने दादा के घर थे. You know, he is the Austrian consul general. So उनके घर में, you know, it's more protected. They can't enter the premises. So अब मेरे बच्चे वहां थे, and so हम लोग एक दूसरे से बस इस तरह बात करते थे कि अच्छा, यू नो, और मेरा हस्बैंड उनकी कस्टडी में था. तो उधर से हमें जो भी, और वो मेरे हस्बैंड के फोन को यूज करके हम सबको मैसेजेस किया करते थे, और मुझे भी मैसेजेस करते थे. एंड उसके थ्रू मुझे कहते, यू नो, उससे वो बन के, लाइक दे वुड impersonate my husband and message me, and then finally I blocked it. And I just said कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, and now I mean I can't have further communication. और बस फिर जब हमने डिसाइड किया कि इन्होंने तो नहीं छोड़ना, so I said I'll go in, and we'll have this exchange. They can have me and release जहांज़ेब. और उसके बाद मैं गई उधर, और and my family again felt कि तुम जाओगी और कोई सबूत नहीं है, और इंशाल्लाह यू नो अगले दिन ही हम कोर्ट चले जाएंगे. और अब खदीजा ये बेहतर आपको बताएगी कि उस जमाने में तो हमें नहीं पता था कि कोर्ट्स का क्या हाल है, लेकिन क्या क्या कोर्ट्स ने किया है. लेकिन एज अ पाकिस्तानी एंड यू नो ऑर्डिनरी सिटीजन, यही ख्याल था कि कोर्ट्स में तो ऑब्वियसली ये सब कुछ कैसे प्रूव करेंगे, देयर इज नो एविडेंस. सो मैं गई, और जब मैं उधर पहुंची तो उनका जो रवैया था मेरे साथ, वो ही इतना, इट वाज, एक होता है ना, यूर इनोसेंट अनटिल यूर प्रूवन गिल्टी. तो इधर तो ये रवैया था कि यू आर, वेदर यू आर इनोसेंट और व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल. और इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने काफी चीजें मुझे कही, अब मैं वो दोहराऊंगी नहीं. और काफी हमारी थोड़ी सी, यू नो, वी गॉट इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एज वेल विद आई गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद द पुलिस ऑफिशियल्स. और फिर इन्होंने कहा इसको ले जाए आप, एंड आई वाज लाइक हाँ प्लीज, यू नो, जस्ट टेक मी. कोट लखपत पहुंच गई. कोट लखपत में इन्होंने मुझे आम जो सजा याफ्ता कैदी थे उनके साथ रख दिया. पीटीआई की जो प्रिजनर्स उधर पहले से थी, आलिया हमजा थी, ये तैयबा राजा थी, सनम जावेद थी. फिर उस जमाने में एक डॉक्टर सुबूही थी, वो यू नो शी वाज एन अमेरिकन सिटीजन आल्सो. मैं जानता हूँ उनको, हाँ, सुबुही को. Yes, so Dr. Subuhi was there. Then there was another lady also. ये 4-5 खवातीन थी उस वक्त, और ये मुझे वहां ले गए, और इन्होंने मुझे बिल्कुल उनसे अलहदा इस बैरक में रखा. एंड सलमान, आई वाज शॉक्ड. यू नो, जब मैं उधर मैं जब पहुंची और मैंने वो देखा, तो आई वाज, यू नो, कि I was like कि यहाँ पे मैं कैसे रहूंगी. एक लंबा सा sort of, it was a room and it was crammed. जैसे आप, you know, वो जो
मूवीज में नहीं दिखाते फार ईस्टर्न सॉर्ट ऑफ प्रिजन्स जहाँ वो लोगों को एक ही कमरे में ढेर सारों को डाल देते हैं. सो उस बिल्कुल तरह से उधर, और औरतें, इतनी ज्यादा औरतें थी, और कोई हाइजीन नहीं थी, कोई सैनिटेशन नहीं थी. हर तरफ खिड़कियां, खुली खिड़कियां थी. देयर वाज नो, यू वर सॉर्ट ऑफ एक्सपोज्ड. बीच में ही बिल्लियां भी फिर रही थी. और आई मीन आई कांट इवन एक्सप्लेन. और उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर रहेंगी. सो आई आस्क्ड देम कि आप पीटीआई की खवातीन के साथ क्यों नहीं रख रहे. सो उन्होंने कहा कि आपके लिए ऑर्डर्स यही हैं कि आप इधर ही रहेंगी. Anyway, slowly but surely I got used to it. और by the end of it तो मैं काफी used to it हो गई थी, क्योंकि मेरी वो जो जितनी भी औरतें थी उनके साथ, in fact my family members would joke कि तुम तो जैसे जरदारी निकला था जेल से, तो उसके सारे दोस्त जो थे उसके बाद उन्होंने वो he had all these prisoners with him in his entourage. So they said कि तुम क्योंकि मैं इतनी ज्यादा उनकी बात करती थी, and they were like so close to me and they became so dear to me. If my family used to be like कि तुम तो you're just like you don't talk about anything else. But of course they became like family. Khadija, so Yasmin Rashid was with you these days? वहाँ उसी prison में थी? जी जी, या नहीं, या सो यास्मीन राशिद व्हेन आई केम इन, उनको शी वाज अनवेल, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए थे. और जिस दिन मैं आई हूँ उसी दिन वो वापस आई थी. सो यास्मीन राशिद वाज आल्सो देयर and she was with the PTI women. So the PTI women all lived in one barrack, और उनके कमरे थे, और एक कमरे में वो दो रह रही थी, और डॉक्टर यास्मीन was in her own room. And खतीजा, I want to just interject, excuse me, ये बहुत important ये है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम में से 50% खवातीन है, ठीक है ना. और जो फर्क पिछले तकरीबन 30 साल में इमरान खान लेके आए हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन जो जलसे और जो उनकी जितनी भी टाउन हॉल मीटिंग्स हैं उसमें पाकिस्तानी खवातीन ने बढ़ चढ़ के शिरकत की है उसके अंदर. आपको क्या लगता है कि ये जो किया गया, और जिस तरह मतलब आपके फैमिली के आर्म्ड फोर्सेस के साथ इतने स्टॉन्च कॉन्टैक्ट्स के बावजूद भी जो आप पे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट जो किया गया, क्या लगता है आपको कि ये लोग पाकिस्तानी खवातीन से डर के कि कहीं ये अगर सियासत में आ गई या इनको सियासी शऊर आ गया तो हमारा जो होल्ड है 77 साल से पाकिस्तान के ऊपर वो कमजोर हो जाएगा? डिड यू गेट दैट फीलिंग कि ये क्यों इतना तशद्दुद कर रहे थे खवातीन के ऊपर? आई थिंक सलमान, इट वाज वेरी क्लियर कि क्योंकि पीटीआई की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खवातीन थी. एंड जितने भी, जैसे तुम यू वर जस्ट सेइंग कि जितने भी जलसे होते थे और प्रोटेस्ट होते थे उस पर औरतें बहुत बड़ी तादाद में निकलती थी. और ये कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ. आप कभी देखें तो पीएमएलएन के जब जलसे होते हैं, इट्स प्रिडोमिनेंटली ऑल मेल्स. सो ये पंजाब में कभी भी नहीं हुआ, और बाकी भी किसी सूबे के अंदर इस तरह से खवातीन कभी नहीं निकली. ये सिर्फ पीटीआई के लिए निकलती है. सो आई थिंक it was very, because the project or the aim was to crush PTI. I think it was very important कि अगर PTI को खत्म करना है या PTI को क्रश करना है तो खवातीन को डराना बहुत जरूरी था, और खवातीन को वापस उनके घरों में भेजना बहुत जरूरी था. एंड आई थिंक कि मुझे इसलिए प्रोफाइल किया गया, आई थिंक, आई मीन आई एम श्योर नाउ, बिकॉज मैं बहुत से बॉक्सेस टिक करती थी. मैं एक औरत भी थी. मैं एक प्रोफेशनल एजुकेटेड, I came from that class of people also, which again was a Khan, professionals कभी, they have always been apolitical. वो कभी politics में ना उनका interest रहा है, ना वो किसी को support करते हैं. But Khan again was able to galvanize this segment of society, which is the educated professionals. So मैं वो भी थी. उसके अलावा I was obviously a known person. I was an entrepreneur. People knew me because of my work. And then I think most fundamentally, my grandfather was obviously the chief of the army staff. And I think the message was कि अगर इनको रिप्रेस किया जा सकता है, और अगर इनके लिए कोई लॉ या कोई रिकोर्स या कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग बाकी अपने बारे में सोच लें कि आपके साथ क्या क्या आपके साथ क्या हो सकता है. Because so I think I served as an example. And खतीजा, मैं इस चीज को ना, I just want to interject again.
और ये क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको बताना ये जरूरी है कि ये जो अभी आपने बात की ना कि आप एक एजुकेटेड फैमिली होम मेकर एंटरप्रेन्योर वुमन, जो अभी इलॉन मस्क ने ट्वीट की कल, फिर उसने वो ट्वीट की है, जो अमेरिका एज अ पाकिस्तान, एक और रेड लाइन जो क्रॉस हुई ना इस बर्बरियत में, कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरे तो वालदेन 60 साल पहले अमेरिका आए थे, सो आई बीन अ पाकिस्तानी अमेरिकन, अ डुअल सिटीजन फॉर ओवर 40 इयर्स। सो इन्होंने वो भी जो रेड लाइन क्रॉस की, जिसके अंदर ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन को नहीं देना चाहते थे, ये पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहना चाहते थे कि खबरदार कि तुमने कोई सियासी शऊर शो किया, क्योंकि नतीजा ये जो हमले हुए हैं ना, पाकिस्तान सबूही, ये शी इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन डुअल सिटीजन, एंड मेरी फैमिली के ऊपर जिस तरह किया गया, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि हम हमारी जो ये इलॉन मस्क ने जिस तरह लिखा ना कि टॉप 5 जो अमेरिका की एथनिक जो डुअल सिटीजन्स है ना, उसमें टॉप 5 में पाकिस्तानी है और हाईएस्ट अर्नर्स, राइट? सो क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को डम डाउन करके रखा जाए, बिल्कुल औरतों को घर में रखा जाए, किचन के अंदर, बच्चे जो हैं वो कुछ ना सोच सकें जी किसको वोट देना है, so that they can continue what they've been doing for 77 years? सलमान, आई थिंक, क्योंकि देखें अब आई डेफिनेटली थिंक कि जब आप इस तरह के जब आपके पास एजुकेटेड लोग पॉलिटिकल स्फेयर में आएंगे, या एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग या कॉम्पिटेंट लोग जिनकी कोई हु हैव अचीव्ड डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, तो वो इट इज नॉट वेरी इजी टू सबड्यू देम, इट इज नॉट वेरी इजी टू डायरेक्ट देम एंड गिव देम, जैसे कि उनको खान साहब के साथ भी यही आई गेस प्रॉब्लम हुई थी कि खान साहब वो हैड अ माइंड ऑफ हिज ओन, and he would not take dictation. And I think the problem is that with people like that, it's hard to control, and it's hard for them to follow, sometimes, like जैसे वो लीडर्स होते हैं जो पर्चियों से पढ़ते हैं, तो एक बंदा जिसके पास एक शऊर भी है, जिसके पास एक्सपोजर भी है, जिसने दुनिया भी देखी हुई है, जो वाकिफ है कि how progress has happened all over the world, when you're aware of it, you want to have that for your own country. और फिर आप वो चीजें करते हैं जो आपने what you've learned how to get there. And I think that maybe is not acceptable, because मैं तो यही देखती हूँ, मैं ये काफी सोचती हूँ कि जिस तरह के हमारे जो over the last 78 years जो हमारी political class develop की गई, and now I would say कि वो की गई, क्योंकि मुझे पता है कि a person like me, for instance, has probably no acceptability in politics, right? And I think that was told to my family on numerous occasions कि she cannot be political, right? So अब मैं देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि जितने भी ये सियासतदान हैं, I guess they are launched from somewhere, or they are given patronage, or they are supported. और जब हम इनका कैलिबर देखते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि I mean आप जरूर you should, leadership programs होने चाहिए, and if you want to create leaders, and you think that is something that you must do to ensure sovereignty and territorial integrity, जो कि I guess is the fundamental mandate that you have, तो आप थोड़े बेहतर लोग चुन लें,